welcome to all of you on the day of Navaratri and happy Navaratri to all of you. So, let us spend first 5 minutes understanding each other. So, can we start introduction round? You can introduce your business, your startup, and your thing. Can we start? About for 30 seconds. Hi everyone, myself Manan Shah. I am from Scholarity. Scholarity help meritorious and needy students to get them scholarship from different providers. Thank you. Myself Keshri Kapadia. I am from Department of ICT BNSGU. We are students of. My name is Rama Shruti. I am also from Department of ICT BNSGU. I am Priyanshi Vishwanath and I am also from Nirmal South Gujarat University, and we are working on a business proposal, but we had to drop it in between due to some reasons. My name is Geeta Lakshya. We are in same team, also from BNSGU and okay. I'm a student of Department of ICT, and we are working on device applications, Parkinson's patients, FOG. Myself Viveka, I am also from Department of ICT BNSGU. I am working together on the patient project. My name is Mithilesh Pamani. I am from Department of ICT BNSGU and I am working on the project for blind people. Myself Pratik Godke. I am working as a R&D engineer at Haram Research Center and I am thinking to join Vision. Myself Bhavish Turasana. I am from Sunrise Software Development. We have developed one product called Alien Business, which is unorganized sector. So just need some guidance to explore the more opportunities. Myself Abhishek Pavadia. We are creating lab diamonds called Mozonite and selling their jewelry in USA, Canada, Australia, UK. From My name is Sheil Jain and I am Parul University alumni, and right now my studies are completed and now I am pursuing for fashion e-commerce startup. I am Uttam Bhatia and pursuing engineering in Parul University and currently doing internship in UX design. In UX design. My name is Mohan Kumar. I am from Department of ICT BNSGU. I am working in agriculture. Myself Sarthak Shah. I am also from Department of ICT and he is my teacher. My name is Jay Kharge and I am also studying in BNSGU. I am Vasu Badani. I am just now working at SkillSound as a UI UX designer. Myself Ajit Patel. I am founder of 6Digit, data analytics platform that helps users to identify and analyze the data of financial markets. Myself Indish Gohil, founder and CEO of the QLM. QLM provides a smart digital business card CRM. And how old is that? 24. Sorry, startup is 2 years old. 2 years. Thank you. Thank you all of you. I was thinking something else, but let us talk something else because the oldest startup is 2 years old. So let us talk some sense. हम लोग आपके बारे में ही बात करते हैं. PLC पढ़ा है सबने? प्रोडक्ट्स लाइफ साइकिल सबने पढ़ा है, राइट? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कैसे होता है? प्रोडक्ट कैसे जाता है, ऐसे बढ़ता है. आज का टॉपिक है ग्रोथ हैकिंग. सो ग्रोथ हैकिंग जनरली अगर हम डायरेक्ट जंप करें तो कोई भी बिजनेस शुरू होता है, उसके बाद धीरे धीरे इस सेगमेंट में जाता है, फिर धीरे धीरे ऐसे बढ़ता है. सेम एज प्रोडक्ट. अब हम लोग हम सब जिस सेगमेंट में है, तो हम कहीं ना कहीं या तो यहाँ पर है, 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 यहाँ पर कहीं पर हम हैं. एंड
whenever we are talking about startup, हमारा सबसे पहला एम्बिशन है कि हमें यहाँ पर पहुँचना है. That is the objective that we all have. Right? That is why we have started or we are entering into or we are aspiring to be a startup founder. तो एक बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज स्टार्टअप? एंड उससे भी पहले एक चीज और, हम सबने सुना है कि 90% स्टार्टअप बंद हो जाते हैं, राइट? सबने सुना है. क्यों बंद होते हैं? और वो बंद नहीं करना है तो क्या करना पड़ेगा? ये क्वेश्चन कब आता है? जब हम यहां पर होते हैं, क्योंकि ये ग्रोथ वाला फेज नहीं है, सस्टेनेबिलिटी वाला फेज है, राइट? तो क्यों ये बंद होते हैं? क्या रीजंस होता है? बर्न रेट ज्यादा हो जाती है. बर्न रेट ज्यादा हो जाती है. वेरी गुड. आपका नाम? शील. और रिसर्च कम होता है. ग्रेट. आपका नाम? आनंद. आपने एक बार इंट्रोड्यूस करवाया था, फिर भी एक बार बोलना तो सब फिर याद हो जाएगा सबको. लैक ऑफ कंसिस्टेंसी. लैक ऑफ कंसिस्टेंसी. वेरी गुड. चंद्रेश. और रूटीन एक्टिविटी में एंगेज हो जाते हैं तो कंटिन्यूटी नहीं रहती. रूटीन एक्टिविटी में हम एंगेज हो जाते हैं, इसलिए बिजनेस को डेवलप करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता है, नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए टाइम नहीं होता है. दैट इज वेरी गुड. भावेश. हम लोग या तो प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं ढूंढ पाते या तो फिर राइट ऑडियंस को टारगेट नहीं कर रहे होते. प्रोडक्ट हम ऑडियंस को कनेक्ट नहीं कर पा रहे और हमारा जो प्रोडक्ट हमने सोचा है वो सेम सेंस में ऑडियंस भी वो नहीं सोचती है, वो कनेक्ट मिस होता है. अजीत. टीम मेंबर में क्लैश होता है. एम्प्लॉइज में क्लैश होता है. कोई एक्सपर्ट्स नहीं है ये जो मेंटर कर पाए और रोड मैप दिखा पाए. कोई मेंटर नहीं है, कोई आउटसाइडर नहीं है जो जैसे देयर आर टू टर्म्स इसको एड्रेस करने के लिए. देयर इज वन आर्मी व्यू, देयर इज वन हेलीकॉप्टर व्यू. आप जब भी बिजनेस में जाते हो तो आप ये दो टर्म्स देखते हो. व्हाट इज द आर्मी व्यू एंड व्हाट इज हेलीकॉप्टर व्यू? किसी को पता है ये जार्गन्स? नहीं. ओके. जब फ्लड आता है तो दो लोग आते हैं. एक कौन आता है? एक आर्मी आता है, एनडीआरएफ आता है, वो जाके लोगों की हेल्प करते हैं. दूसरा कौन आता है? पॉलिटिशियन आता है जो हेलीकॉप्टर से आता है, राइट? सो दिस इज आर्मी व्यू, दिस इज हेलीकॉप्टर व्यू. ये दोनों जरूरी है. ऐसा नहीं कि सिर्फ आर्मी जरूरी है, हेलीकॉप्टर व्यू भी जरूरी है कि नीचे क्या चल रहा है, कहां से क्या स्ट्रेटेजाइज करे, ये भी जरूरी है. तो दैट इज व्हाट इज सेइंग कि हेलीकॉप्टर व्यू इज मिसिंग. आर्मी व्यू इज देयर बट हेलीकॉप्टर व्यू इज मिसिंग. देन एनीथिंग एल्स? इनोवेशंस टाइम के साथ अपडेट नहीं कर पाते तो जैसा मिस्टर अजीत से कि हमारी जो प्रोडक्ट्स हमने बनाई उसको कनेक्ट नहीं किया, जो मार्केट की डिमांड है उसके हिसाब से हमने अपडेट नहीं किया. दैट इज व्हाट यू आर सेइंग, राइट? योर नेम? शील. सबको याद हो जाए तो बोल देना कि मुझे याद हो गया है, तो हम नाम पूछना बंद कर देंगे. एनीथिंग एल्स? So what we are saying is कि there are some internal factors, there are some external factors. ये दोनों इफेक्ट करते हैं जिसकी वजह से 90% स्टार्टअप्स बंद हो जाते हैं इस फेज में, राइट? इसका रेमेडी क्या है? अगर हमें ये सारी चीजें पता है कि ये फैक्टर है, ये फैक्टर है, ये फैक्टर है, ये फैक्टर है, राइट? तो व्हाट इज द सॉल्यूशन? उसका कोई सॉल्यूशन भी होगा. वी हैव आइडेंटिफाइड द प्रॉब्लम्स, राइट? यू ऑल नो द प्रॉब्लम्स कि दीज आर द प्रॉब्लम्स. सो व्हाट इज द सॉल्यूशन? नाउ व्हेनेवर यू आर सेइंग, जो भी आप लोगों ने बोला कि ये रीजन है, ये रीजन है, ये रीजन है, ये रीजन है, तो ये सारा आपने कहीं ना कहीं या तो पढ़ा है, कहीं देखा है, कहीं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया है, इसलिए आपने ये सारे रीजंस बोले हैं. 95% रीजन यही सारे होते हैं. बट ये सबका बेसिक रीजन ये है, बेसिक रीजन कि स्टार्टअप बंद क्यों होता है? स्टार्टअप फिर से मैं बोल रहा हूं, स्टार्टअप कभी भी बंद नहीं होता है. धंधा कभी भी बंद नहीं होता है, धंधा बंद किया जाता है. बिजनेस नेवर शट्स डाउन, बिजनेस बंद किया जाता है. और वो कौन बंद करता है? फाउंडर.
प्लीज अंडरस्टैंड, जब आप इस लेवल पर हो या किसी भी लेवल पर हो, आज तक दुनिया में कोई भी बिजनेस बंद नहीं हुआ। कोई भी बिजनेस आज तक दुनिया में बंद नहीं हुआ है, हमेशा बिजनेस बंद किया गया है। वो कब किया जाता है? ही थिंक्स कि अभी कोई फ्यूचर नहीं है, ही थिंक्स कि मेरे पास पैसा नहीं है, ही थिंक्स मेरा कॉम्पिटिटर बहुत स्ट्रॉन्ग है, ही थिंक्स कि मेरे पास मेंटर नहीं है, ही थिंक्स कि ये प्रॉब्लम है, ही थिंक्स कि ये प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीजें एक बार साइड पे हटा दो। इफ यू वांट टू गेट इनटू बिजनेस, ए बी, प्लीज रिमूव द वर्ड स्टार्टअप फ्रॉम योर माइंड। स्टार्टअप क्यों वर्ड है? क्योंकि गवर्नमेंट वांट्स टू सब्सिडाइज कि आपको इनिशियली सब सपोर्ट मिले, बट इट इज नॉट स्टार्टअप, इट इज योर बिजनेस। द डे यू विल थिंक कि दिस इज माय बिजनेस, वो कभी बंद नहीं होगा, क्योंकि सारे सपोर्ट आपको मिलेंगे स्टार्टअप्स के। यहाँ पर देखिए इतना करोड़ों रुपया गवर्नमेंट दे रही है, पंचम भाई लोग खजांची है, चेक लिखते जा रहे हैं, सब दे रहे हैं, राइट? बट वो लेने के लिए स्टार्टअप अच्छा है, बट यू नीड टू थिंक कि दिस इज माय बिजनेस। What is business? What is business? What is the difference between startup and business? According to me, startup is something that has never existed in the market, but whereas business is जो already से था, जिसका product already established हो गया, हम उसे किसी नए तरीके से करते हैं। Correct. As per the definition, this is Ajit. What Mr. Ajit said is correct, but practically स्टार्टअप वो है कि जिसमें कोई और फंड करता है, जहां पर या तो गवर्नमेंट फंड करती है या तो कोई ना कोई आदमी फंड करता है। बिजनेस वो है जिसमें फंडिंग कौन देता है? बूटस्ट्रैप। और बूटस्ट्रैप इज अगेन अ काइंड ऑफ स्टार्टअप ओनली, बट जब आपके दिमाग में आएगा कि ये बिजनेस है, कुछ करते हैं। That is bootstrap, what he has said. But when you are thinking कि ये मेरा बिजनेस है, इसका मतलब आपके बिजनेस में फंडिंग कौन कर रहा है? That is startup. जब आपका माइंडसेट है कि मैं खुद पैसा डाल रहा हूँ, या आपका माइंडसेट है कि वीसी डाल रहा है, या आपका माइंडसेट है कि गवर्नमेंट डाल रही है, that is your mindset is of startup. बिजनेस, धंधे में फंडिंग कौन देता है? कस्टमर। जिस दिन आपने कस्टमर से पैसा लिया, जिस दिन आपका कस्टमर आपका बिजनेस फंड कर रहा है, उस दिन आप बिजनेस में हो। सो दो चीजें हमेशा याद रखना, धंधा कभी बंद नहीं होता है। वी आर क्लोजिंग द बिजनेस। किसी भी सिचुएशन में इट नेवर एंड्स। वी आर लूजिंग द होप, वी थिंक कि यार अभी आगे कोई रास्ता नहीं है, देन वी आर क्लोजिंग द बिजनेस। A. B. There is a difference between startup and business, and for taking the benefits, yes, you can take all the benefits of startups, but it will be sustainable if your mindset is of business. क्योंकि business कभी बंद नहीं होता है। जब mindset होगा startup का तो 90% बंद होगा, but जिस दिन से customer से पैसा आने लगेगा, आपको कोई जरूरत नहीं है। और actually ये support इसीलिए आता है कि आपके पास जब तक कस्टमर से पैसा नहीं आता है, तब तक आपके पास एक सस्टेनेबल रेवेन्यू है, एक सस्टेनेबल सपोर्ट है, जिससे आपका बिजनेस फंड होता रहे, जिससे आपका बिजनेस आगे बढ़ता है। सो बट 80-90% केसेस में क्या होता है? अरे मैंने तो स्टार्टअप किया, मुझे फंडिंग चाहिए, फंडिंग आ भी गया, अब क्या? अब उसका कोई रोड मैप ही नहीं है कि भाई ये पैसा मेरे पास आया, अब मैं कहाँ यूज करूंगा। मैंने ये सेल्स में डाल दिया, ये मैंने मार्केटिंग में डाल दिया, ये मैंने एम्प्लॉइज को डाल दिया, मैंने एक बड़ा सा ऑफिस ले लिया, ये सब खर्चा हो गया था। बट दैट शुड बी अ रोड मैप कि मुझे एक XYZ वैल्यूएशन पर एक XYZ अमाउंट मिला है, ये XYZ अमाउंट कहां पर जाएगा, कैसे जाएगा, जिससे मेरा एंड ऑब्जेक्टिव अगेन वही है कि मेरे पास कस्टमर्स आए, वो कस्टमर मेरे को सस्टेनेबल ग्रोथ दे। सो ग्रोथ हैकिंग, ग्रोथ वहीं से आएगा जब कस्टमर आएगा, कस्टमर के बिना कोई ग्रोथ नहीं है। अब यहां पर मैंने एक दो चीजें बोला, सेल्स, मार्केटिंग, ये सब बोला है।
तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्स, मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग? हम लोग बात करते हैं ना, ये यहाँ पर तब जाएगा ना जब एक ब्रांड बनेगा, मेरा बिजनेस एक ब्रांड है, राइट? तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्स, मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग? वी आर जस्ट क्लियरिंग द कॉन्सेप्ट कि यहाँ पर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, राइट? सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्स, मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग? Sales is आपका नाम? Veer. Sales is when we are giving our product to the customer in exchange of money or services. Marketing is we are creating the demand for our product, that this is the people that want to buy our product. And branding is labels and things that we attach to our product to know, let people know that this is our company that selling these products. Correct. Anybody else want to add? Yes. So branding is basically you create a trust. Everybody knows his name now? Sir, so branding is basically when you create a trust towards the customer. तो कस्टमर आपके पास तभी आएगा जब आपकी ब्रांड की कोई ट्रस्ट वर्दी होगा और या वैल्यू होगा, तो that is the branding that you want to create your brand to that level. Marketing is that, sir, that you want to reach to the many varieties of people and you want to outscale your market and all. So that is what you are doing, that you are approaching towards different people and different location demographics. तो उसके हिसाब से आप outreach कर रहे हो marketing. And sales is that your products and कितना उसके हिसाब से जितना marketing हुआ है उसके हिसाब से कितना आपको conversion rate मिला हुआ है और कितना sales हुआ है आपका, वो that is sales. ये दोनों सही है या किसी और को कुछ एडिशन या डिलीशन करना है? और सबको समझ में आया कि नहीं आया? टू समराइज जो इन्होंने बोला उसको एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं। टू समराइज, सेल्स क्या है? आपने आपका प्रोडक्ट या तो आपका सर्विस किसी को दिया, उसके बदले में हमने कुछ पैसा दिया, दैट इज सेल्स, राइट? Marketing is what? Marketing is basically to generate the sales. To generate the sales, you are creating some awareness or you are making your potential customer aware about your product or service through different mediums. जिसके बहुत सारे mediums हैं, ऐसे से कि आप कुछ न्यूज़पेपर में ऐड देते हो, आप कुछ डायरेक्ट मार्केटिंग करते हो, you are doing digital marketing. Branding. ब्रांडिंग में आने से पहले अगेन आई एम कमिंग टू मार्केटिंग। मार्केटिंग और सेल्स ये दोनों का डिफरेंस जब मैंने बोला तो आप सबने भी बोला, इन्होंने भी बोला, सबने बोला, मुझे समझ में आ गया। बट प्रैक्टिकल वर्ल्ड में एवरीबडी इज मेकिंग वन मिस्टेक। एवरीबडी इज थिंकिंग मैं तो मार्केटिंग कर लूंगा, मैं मार्केटिंग में इतना पैसा डाल दूंगा, मेरा सेल्स डबल हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, इट नेवर हैपेंस। मार्केटिंग इज basically you are using different mediums. You can measure sales afterwards, but आपकी जो भी स्ट्रेटेजीज है वो स्ट्रेटेजीज से अगर आप ये सोचोगे कि मैंने 1 रुपया डाला है और मेरे को 10 रुपए का सेल्स मिलेगा तो नहीं होगा। हो सकता है 1 रुपया डाला और 100 रुपए का भी सेल्स हो सकता है 1 रुपया डाला है 50 रुपए का भी सेल्स हो। और अगर आपने 1 रुपया डाला, आपकी स्ट्रेटेजी सही नहीं हो तो हो सकता है आधे रुपए का भी सेल्स। सो डोंट लिमिट योरसेल्फ कि मैंने 1 रुपया डाला है मुझे 2 रुपए का सेल्स, नहीं। ये भी हो सकता है 1 रुपया डाला और 50 रुपए का सेल हो, इफ योर स्ट्रेटेजीज आर करेक्ट, बिकॉज़ स्काई इज द लिमिट इन केस ऑफ मार्केटिंग। नाउ कमिंग टू ब्रांडिंग, कैन यू रिपीट अबाउट ब्रांडिंग व्हाटएवर यू हैव सेड? The companies basically creates labels or any type of symbols or what is it, logos for the website that or their product that they apply on the product or the boxes that they supply the product in. Can you repeat what is branding? Sir, the branding is basically that customers come to you, मतलब trustworthy create करना है आपको अपने customers के साथ, familiarity create करना है, that is branding. So that the customers will trust you before anybody else brand. एक फैक्टर है ट्रस्ट, what you are saying,
branding is not only trust. Trust is one factor. Branding is you are creating something that the customer perceives that he gets. Like अगर आप ये ले लो रिबॉक का, ये ले लो शूज, आप नाइकी का शूज ले लो, नाइकी का क्या है अभी, दिस इज व्हाट नाइकी इज, ये क्या है, व्हाट इज दिस, जूता ही है, राइट? कहीं जाओगे तो 500, 600, 1000 रुपए में मिल सकता है। इसका अभी कोई ब्रांड था कुछ $25,000 में कोई ब्रांड लॉन्च किया इसने कुछ नाम से, तो व्हाट इज द डिफरेंस? $25,000 का एक शूज और 600,000 रुपए का भी एक शूज, क्यों कोई इतना पैसा देगा? वैल्यू क्रिएट उन्होंने कुछ ऐसा किया है ताकि द कस्टमर थिंक्स दैट आई एम गेटिंग दिस, आई एम नॉट गेटिंग अ शू, आई एम गेटिंग दिस ब्रांड। वो कुछ, वो क्या है, वो कुछ हो सकता है, ये ट्रस्ट है, और क्या है, ये हो सकता है कि आपने ये बोला कि भाई मेरे पास सबसे अच्छा क्वालिटी है, और क्या है, आफ्टर सेल सर्विसेज, आफ्टर मतलब द कस्टमर विल परसीव कि भाई मेरा आफ्टर सेल्स ये ब्रांड जो है उसका आफ्टर सेल्स सर्विस इज परफेक्ट। स्टेटस, कोई बोलेगा कि मेरा स्टेटस है, और क्या है, टॉप इन द सेगमेंट, आप ये परसीव करवा रहे हो कि आई एम द किंग ऑफ दैट सेगमेंट। जैसे आई ऑलवेज रिमेंबर दिस iPhone, you can get into the status. iPhone is not topping the segment. iPhone is related to more of status, जो आजकल तो वो भी अभी नहीं है। Anything else you want to add? Starbucks kind of thing. Yes. Anything else जो इसमें ऐड हो सकता है? मतलब इसमें क्या लिखूं? हाउ आर यू एसोसिएटिंग टाटा विद सोशल कंट्रीब्यूशन, सोशल कंट्रीब्यूशन? Anything else? Comfort and satisfaction. Comfort and satisfaction. continuous innovation. Innovation. This brand is doing continuous innovation. Anything else? Infrastructure. Infrastructure. Can you give some example? For example, if we consider example of some hospitality, in that case, Right. So people will perceive कि इनका infrastructure बहुत अच्छा है if there is a physical service. Hospitality or medical kind of thing. Correct. Anything else? कुछ ऐड करना है कि should we proceed? So to summarize, branding is something else. Branding कैसे किया जाता है? तो ब्रांडिंग ऐसे किया जाता है कि जो भी आपका प्रोडक्ट है कि दिस इज माय प्रोडक्ट, सपोज दिस इज माय प्रोडक्ट, यू नीड टू मेक वन पर्सन एज अ फाउंडर और एज अ ब्रांड मैनेजर, इफ यू आर अ ब्रांड मैनेजर ऑफ एनी कंपनी, व्हाट दे आर डूइंग इज कि ये मेरा ब्रांड है, ये एक पर्सन है, अब ये एक पर्सन है, वो क्या होगा, मेरा कस्टमर ये आदमी को क्या सोचना चाहिए, मेरा कस्टमर ये सोचना चाहिए कि ये ट्रस्ट है, मेरा कस्टमर ये सोचना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेरा कस्टमर ये सोचना चाहिए कि स्टेटस है, क्या है, उस आदमी को क्या होना चाहिए, उसका मैं परसेप्शन मार्केट में क्रिएट कैसे करूं, वो दैट इज कॉल्ड ब्रांडिंग, वो मेरे ब्रांड के साथ एसोसिएट होना चाहिए। उसके लिए लोग सालों के साल लगाते हैं और लगाना भी चाहिए, एंड दैट इज द मेन गेम। आपकी ग्रोथ तभी होगी जब you are making a brand. That brand can be your product, that brand can be your service, that brand can be you.
राइट? आजकल लोग पर्सनल ब्रांडिंग भी कर रहे हैं, दैट ब्रांड कैन बी यू ऑल्सो. बट व्हाट इज दिस? दिस इज योर प्रोडक्ट. कस्टमर इस प्रोडक्ट को एक इंसान के रूप में देखना चाह रहा है. ये इंसान क्या है? ट्रस्ट मुझे दिखाना है उसको, मुझे स्टेटस दिखाना है, मुझे क्या दिखाना है, वो सारी चीजें दिखाने के लिए मुझे किस टाइप का मार्केटिंग करना पड़ेगा, मुझे किस टाइप की स्टोरीज क्रिएट करनी पड़ेगी जो मेरा सेल्स वाला मार्केट में जाके यही को देगा, मुझे किस टाइप की स्टोरी क्रिएट करनी पड़ेगी जो मेरा डिजिटल मार्केटिंग करेगा, मुझे किस टाइप की स्टोरी बोलनी पड़ेगी जो एवरीबडी आर ऑन द सेम पेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम. दे शुड बी ऑन द सेम पेज कि मेरा ब्रांड यही है. लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ, हम एक बात करते हैं ऑयल. गाड़ी में ऑयल डलता है, राइट? ऑयल में कोई कंपनी याद आती है किसी को? शेल. ब्रांड की बात करते हो, सबको टॉप ऑफ द माइंड कैस्ट्रोल आता है. टॉप ऑफ द माइंड कैस्ट्रोल क्यों आता है? क्योंकि उन्होंने अपना ब्रांड उस तरह से क्रिएट किया है. कैसे क्रिएट किया है? तो भाई हम लोग ऑयल है, फिर आया हम लोग बेस्ड ऑयल है, फिर आया हम लोग सारे सेगमेंट में है. ट्रैक्टर के लिए भी है, मोटरसाइकिल के लिए भी है, इसके लिए भी है, उसके लिए भी है. फिर आया जॉन अब्राहम मेरा ब्रांड एम्बेसडर है, मतलब न्यू जेन में भी मैं, जो एकदम रेसिंग वाला है, वो रेसिंग के सारे स्पोर्ट उन्होंने स्पॉन्सर कर दिया. उसके बाद नेक्स्ट क्या आया? उसके बाद नेक्स्ट ये आया उनका पंच लाइन, इफ समबडी रिमेंबर्स, कि वी आर नॉट ऑयल, वी आर लिक्विड इंजीनियर्स. मतलब ऑयल के बारे में जो कुछ भी है हमसे ज्यादा किसी को पता ही नहीं. So that is how they evolved. That is why how they became a brand. So उन्होंने क्या किया? ये मेरा डिब्बा है, ये डिब्बे को लोग कैसे जानेंगे? ऑयल तो हमारे डे टू डे यूज में भी नहीं आता है, 3-4 महीने 6 महीने में एक बार डलवाते हैं, वो भी मैकेनिक डाल देता है, राइट? बट स्टिल वी ऑल नो, like he said Castrol, 2-3 people said Castrol, somebody said Shell. Shell ने क्या किया? What is the story of Shell? Shell came into market late, but Shell ने सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन का गेम किया. Shell became a well-known brand through distribution. तो Shell को आप इस तरह से एसोसिएट नहीं कर पाओगे जैसे कैस्ट्रोल को एसोसिएट कर पा रहे हो, बट उनका वॉल्यूम भी इट इज एज गुड एज कैस्ट्रोल थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन. सो एक होता है ब्रांडिंग, दूसरा होता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. कि आपके जितने भी पेट्रोल पंप्स है, शेल के खुद के भी थे, गैस स्टेशंस भी थे, उसमें उन्होंने भी डाला. सो दीज आर सम ब्रांड्स ये जो हमारे साथ, जैसे कॉलगेट सब यूज करते हैं, तो ब्रांड बनाना इजी है कि उसमें कुछ ये बोलो ये बोलो, बट दीज काइंड ऑफ ब्रांड्स कि जो रोज यूज नहीं हो रहे, फिर भी अगर ब्रांड बन सकते हैं, तो आपका जो भी प्रोडक्ट है वो तो हो सकता है डे टू डे यूज में आ रहा हो सकता है कस्टमर रोज उसके साथ यूज में आ रहा हो, उसके साथ इंटरेक्ट कर रहा हो, आपके ट्रेडर के साथ इंटरेक्ट कर रहा हो, आपके सेल्स वाले के साथ इंटरेक्ट कर रहा हो सकता है. तो यू कैन मेक अ बिगर ब्रांड, एनीबडी कैन मेक अ बिगर ब्रांड. इट इज नॉट अ बिग डील. यस, यू नीड टू पुट इन ऑल योर हार्ड वर्क टू मेक दिस अ ब्रांड थ्रू दिस. Okay. So, coming back to the basics again. हम लोग अभी भी यहीं पर हैं. We are here only. What we are saying is कि हमारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर है. What is sales, what is marketing, what is branding, how to make brand. अब now यहां से यहां कैसे जाए? क्योंकि पहला सेगमेंट, पहला स्टेप तो ये है कि यहां से यहां पहुंचना है. तो यहां से यहां कैसे जाए? तो क्या क्या कर सकते हैं यहां से यहां पहुंचने के लिए? सबको पता है क्या क्या करना चाहिए? सेल्स मार्केटिंग ब्रांडिंग. सेल्स मार्केटिंग ब्रांडिंग कैसे? कंटिन्यूसली इनोवेशन के साथ. इनोवेशन मतलब आप अपनी ब्रांड को इनोवेशन के साथ एसोसिएट करना चाह रहे हो.
और आप आपकी सेल्स प्रोसेस और मार्केटिंग प्रोसेस में कुछ इनोवेशन लाना चाह रहे हो, जो आइडियली ब्रांड में आप कर सकते हो। सेल्स और मार्केटिंग में इनोवेशन इस स्टेज पे नहीं करना चाहिए। जो ये स्टेज है इसमें कोई इनोवेशन सेल्स और मार्केटिंग में आइडियली नहीं करना चाहिए। कोई भी यहाँ पर 100% ट्रूथ नहीं है, मार्केट इज योर्स, बट 90-95% केस में सेल्स मार्केटिंग की जो प्रोसेसेस है इस स्टेज में उसमें इनोवेशन नहीं करना चाहिए। आपकी प्रोडक्ट में इनोवेशन कर सकते हो, आपकी ब्रांड में इनोवेशन कर सकते हो, बट जो प्रूवन डेटा है, जो प्रूवन पाथ है, उसको यहाँ पर पकड़ के चलोगे तो जल्दी ऊपर आओगे। अगर नया रास्ता ढूंढोगे तो भी हो सकता है आ जाओ, बट इट विल बी अ लॉन्गर रूट। तो सेल्स, मार्केटिंग और ब्रांडिंग ये कैसे कर सकते हो? व्हाट आर दोज वेज? टीम बिल्डिंग, एक अच्छी टीम बिल्ड करनी। टीम बिल्डिंग, एम्प्लॉइज, गुड एम्प्लॉइज। और एम्प्लॉइज किसके लिए चाहिए आपको? ऑपरेशंस के लिए। ऑपरेशंस के लिए चाहिए। और किस चीज के लिए चाहिए? कस्टमर के साथ इंटरेक्शन, कस्टमर सपोर्ट। और प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट आइडियली आप अगर इस स्टेज में हो तो इट शुड बी अवर जॉब कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट पहले 3 साल हमें खुद ही करना चाहिए, किसी का सपोर्ट ले सकते हैं, बट आइडियली अगर हम खुद करें, क्योंकि हमसे अच्छा कोई नहीं है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में कस्टमर से बात करो, वेंडर से बात करो, कॉम्पिटिटर से बात करो, जितना खुद करोगे दैट इज बेटर। फिर भी आई एम राइटिंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट। और किस चीज के लिए चाहिए? और यू कैन सी नॉट प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट मेकिंग। प्रोडक्ट वी शुड डेवलप, बट जो उसका बनाने का जो काम है, आई थिंक यू माइंड दैट, राइट? करेक्ट? और किस चीज के लिए चाहिए? सेल्स में आते हैं। जब भी हमारे पास कोई प्रोडक्ट है तो हम कैसे करेंगे? सेल्स में कैसे जाएंगे? हाउ विल वी सेल? प्रैक्टिकली किस टाइप का सेल्स होता है? एक होता है B2B, एक होता है B2C, सबको पता है ये? डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट, फर्स्ट यू नीड टू डिसाइड कि मुझे B2B में जाना है, B2C में जाना है या दोनों में जाना है। B2C में जाना है तो यू नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग distribution. Somebody else said something else. Storytelling. Somebody else said something else. टारगेट ऑडियंस पता होना चाहिए। टारगेट ऑडियंस पता होना चाहिए। और ब्रांड स्टोरी होनी चाहिए। ब्रांड स्टोरी होनी चाहिए। ये सारी चीजें जरूरी है, जैसे टारगेट ऑडियंस पता होना चाहिए, ब्रांड की स्टोरी होनी चाहिए। ये सारी चीजें आपको किसको बताना है? आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को। आपके पास एक स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होना चाहिए, जो आपके पास डे 1 में नहीं होगा, कभी नहीं होगा। आपके पास 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक आपके पास कभी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनेगा ही नहीं। बट थियोरेटिकली आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होना चाहिए, बट वो बनाने के लिए आपको चाहिए एम्प्लॉइज। तो ये जो ऑपरेशंस है, कस्टमर सपोर्ट है, ये तो है ही। अगर आप बहुत बड़ा फैक्ट्री डाल लो, बट व्हेन वी आर इनटू अर्ली स्टेज स्टार्टिंग अप, we should have employees for our distribution network who will set our distribution network, who will tell our story to our distributors, to our vendors, to our customers. सबसे पहला हमारा काम है इस स्टेज में कि मेरे पास पहले 1000 कस्टमर कहां से आएंगे, जहां से भी आए, चाहे B2B से आए, चाहे B2C से आए, चाहे मैं खुद जाके करूं। somebody told me, I think I don't remember, somebody told me कि मैं खुद जाके बेचता हूं। that is great। कुछ भी करो, पहले 1000 कस्टमर मेरे पास आने चाहिए, चाहे कुछ भी करो। ये सारी चीजें तो है। ये सारी चीजें किस लिए है? फंडामेंटल्स जब आपके क्लियर
करने हैं उसके लिए सारी चीजें। बट पहला 1000 कस्टमर आपके पास खुद की मेहनत के बिना नहीं आएगा। पहला 1000 कस्टमर आपके पास खुद की मेहनत के बिना नहीं आएगा। खुद ही डालना पड़ेगा उसके अंदर सब कुछ, खुद को घुस जाना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, तब यू विल हैव दोस फर्स्ट 1000 कस्टमर्स। एक बार आपके पास ये पहले 500, 700, 1000 कस्टमर्स आ गए, चाहे B2B से, चाहे B2C से, चाहे आपने डायरेक्ट Amazon, फ्लिपकार्ट वाला जो मॉडल है उसमें डाल दिया, कुछ भी करके, चाहे आपने खुद डायरेक्ट सेलिंग कर दिया, कुछ भी करके आपके पास आया, उसके बाद यू नीड टू सिट एंड वेट एट दिस स्टेज कि मेरे पास अभी इतने कस्टमर्स है, नाउ आई रिक्वायर वन एम्प्लॉई कि जो इस 1000 कस्टमर को फैसिलिटेट करे, इनको संभाल के रखे। उसका काम और कुछ भी नहीं है, उसका काम सीधा सीधा यही है, ये 1000 कस्टमर को मैं ऐसे हैंडल कर रहा हूं, आपको सीधा सीधा कॉपी यही करना है, आपको और कुछ नहीं करना है। मैं ये कर रहा था, ये आपको करना है और कुछ भी नहीं करना है। दैट विल बी योर 1000 कस्टमर्स। वो एम्प्लॉई वही करेगा जो आपने किया है, उसका कॉपी करेगा और कुछ भी नहीं करेगा, ताकि यू कैन कम आउट ऑफ दैट। समबडी सेड इन द बिगिनिंग कि हम लोग डे टू डे में उतने ऊपर घुस जाते हैं कि हम बाकी का काम नहीं कर पा रहे। सो जब आप इस स्टेज में हो तब आपको करना पड़ेगा, आपका जो पहला या दूसरा एम्प्लॉय होगा उसको सीधा सीधा कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, उसको उसके ऊपर आप कुछ भी नहीं डाल सकते। अगर आपने ये सोचा कि मेरा प्रोडक्ट बना है, अभी मैंने तो एम्प्लॉय रख लिया, वो जाके सेल कर लेगा, वो जाके मार्केटिंग करेगा, नहीं होगा। Because it is your product, what you have thought is what you have thought. वो आप जिस हिसाब से बताओगे अपने कस्टमर को, अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, वो कोई और बता ही नहीं सकता। Nobody in this world can do the job that you are doing because you know your product better. तो पहला 1000 कस्टमर मुझे ही और मैं ही ला पाऊंगा और कोई ला भी नहीं पाएगा। अगर हमने सोचा कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, डिजिटल मार्केटिंग भी किया, तो भी वो जो कस्टमर है उसको संभालना तो पड़ेगा। कौन संभालेगा? और कोई नहीं। इसके बाद वंस यू हैव दिस, डोंट स्टॉप एट दिस। उसके बाद यू नीड टू हैव योर फर्स्ट और सेकंड एम्प्लॉय जो इनको हैंडल करेगा। ही विल बी रिपोर्टिंग टू यू कि मैंने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। पहले 7 दिन उसके साथ हैंड ओवर करना पड़ेगा कि भाई ये तुमने किया है, ये तुमने किया है, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आई, उसको सॉल्व करो। 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन में वंस यू आर कंफर्टेबल देन गेट आउट ऑफ दोस कस्टमर्स। उसके बाद इन कस्टमर्स के साथ चाय पीने का रिश्ता होना चाहिए आपका, क्योंकि ये कस्टमर आपके इनिशियल कस्टमर्स है, ये आपको छोड़ के कभी नहीं जाएंगे, प्रोवाइडेड आपका उनके साथ चाय का रिश्ता है। अगर वो रिश्ता नहीं है तो चले जाएंगे। और यही कस्टमर्स है जो सबसे अच्छे कस्टमर्स है आपके पास। यहाँ पर बहुत सारे कस्टमर मिलेंगे, वो आपके सबसे अच्छे कस्टमर, वो आपको सबसे ज्यादा पैसा ये लोग देंगे, बट आपके लॉयल कस्टमर ये 1000 कस्टमर है, इनको कभी मत जाने दो। जो ये 1000 कस्टमर है, ये जब तक आपका धंधा चलेगा तब तक आपके साथ रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, प्रोवाइडेड आपने उनको नहीं जाने दिया। वो जाना नहीं चाहते, वो कभी जाना नहीं चाहते। अगेन जैसा मैंने बोला, बिजनेस फाउंडर बन करता है, वैसे ये कस्टमर भी फाउंडर ही बनाता है। कभी ये हो जाता है आप कुछ, जब आप इस स्टेज पर आओगे तो यू विल बी वेरी बिजी, तो फोन नहीं उठाया, हो सकता है, गिव अ कॉल बैक, ऑलवेज गिव अ कॉल बैक। ये पॉसिबल नहीं है कि आपने 100% कस्टमर के फोन उठाए, बट अगर वो आपका 2 रुपए का भी कस्टमर है तो उसको कॉल बैक जाना चाहिए। ये 1000 कस्टमर को कॉल बैक नहीं गया, दैट मीन्स उस दिन से आपका डाउनफॉल शुरू हो गया। इस 1000 कस्टमर को कभी मत जाने। नाउ कमिंग टू दिस स्टेज, आपके पास एक एम्प्लॉई आ गया है। नाउ यू नीड टू फिक्स अप दिस कि अब मेरा डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप कैसे होगा। डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप कैसे होता है, किसी को पता है, किसी ने किया है, किसी को एक्सपीरियंस है तो बता सकता है। डिस्ट्रीब्यूटर का मार्जिन कैसा होता है, व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप, किसी को कोई आइडिया है व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप? यू कैन शेयर और आई विल शेयर।
In services, it is like a referral program or partner program, and in products, it's like a wholesaler, retailer or distributor. राइट, हम एक एग्जांपल देते हैं ताकि हम डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप को बहुत अच्छे से समझें। अभी किसी ने एप्पल का नाम लिया, राइट? तो एप्पल का एक डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप होता है, या तो आपने सैमसंग का नाम लिया, किसी भी हेडसेट का हम एग्जांपल देते हैं। तो एक कंपनी होता है जहां पर ये मैन्युफैक्चर होता है, सो देयर इज अ मैन्युफैक्चरर, राइट? In case of Apple, manufacturer is somebody else, company is somebody else. But let us, for simplicity, have कि हम ही मैन्युफैक्चरर है, हम ही बेच रहे हैं। तो ये कंपनी है, इसके नीचे होगा एक C&F। तो आपका अगर कोई प्रोडक्ट है तो उसका एक C&F होना चाहिए। अगेन ये सेट रूल्स है, इसमें कोई चैनल या तो कोई लेवल आप स्किप कर सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि सारे के सारे लेवल आपके अंदर होने चाहिए। आपके लिए क्या अच्छा है वो आपको डिसाइड करना है। ये क्या सेट सिस्टम है वो मैं आपको बताऊंगा कि C&F है। जैसे इन केस ऑफ सैमसंग देयर इज अ C&F ऑफ इंडिया। इंडिया का एक C&F है, उसके नीचे देयर इज स्टेट वाइज सब C&F, स्टेट C&F। C&F का फुल फॉर्म होता है कॉस्ट एंड फॉरवर्डिंग एजेंट। मतलब उसको एक छोटा सा मार्जिन मिलता है, उसका काम कुछ नहीं होता है, वो एक कंपनी से माल खरीदता है, अपने पास स्टॉक रखता है और आगे बेचता है। ये स्टेट का C&F होता है। इसके नीचे होता है डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है सिटी वाइज हो सकता है बड़े सिटी में 3-4 डिस्ट्रीब्यूटर हो, छोटे सिटी में एक डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है 4-5 छोटे सिटी मिलाकर एक डिस्ट्रीब्यूटर हो। इसके नीचे होते हैं रिटेलर एंड होलसेलर। होलसेलर जो होता है वो ऑफिशियल चैनल नहीं है, ऑफिशियल चैनल इज रिटेलर। मतलब मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, सैमसंग का माल आएगा इंडिया में, इंडिया के एक C&F होगा जिस गोडाउन में आएगा, उसके बाद स्टेट वाइज वो माल जाएगा, उसके बाद सिटी के डिस्ट्रीब्यूटर के पास आएगा, उसके बाद वो रिटेलर के पास आएगा। रिटेलर मतलब आपके घर के आसपास जो दुकानें हैं, दे आर द रिटेलर्स, जहां से आप मोबाइल खरीदते हो। इसके साथ साथ एक दूसरा चैनल भी होता है, एक कंपनी ओन्ड स्टोर कि जो कंपनी को चलाती है। इसके पास भी जो गुड्स आते हैं या तो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू आता है या तो C&F के थ्रू आता है। ये सेट पैटर्न होता है किसी भी कंपनी में। इसमें कुछ कंपनी में ये लेवल स्किप हो जाता है, कुछ कंपनी में ये लेवल स्किप हो जाता है, कुछ कंपनी में 1-2 लेवल और ऐड हो जाता है, डिपेंडिंग ऑन योर प्रोडक्ट, डिपेंडिंग ऑन योर सर्विसेज। जनरली सालों से, मतलब पिछले 1000 साल से जो भी सेल्स का सिस्टम हुआ है वो इसी तरह से होता है कि मैंने प्रोडक्ट लॉन्च किया, मैं आऊंगा, दिल्ली में जाऊंगा, दिल्ली में मैं C&F बनाऊंगा या तो मुंबई में बनाऊंगा, फिर वो C&F क्या करेगा, गुजरात में करना है, अहमदाबाद में जाऊंगा मैं कालूपुर में, वहां पर एक बड़ा सा मैं C&F या डिस्ट्रीब्यूटर बना दूंगा, वो पूरे गुजरात में डाल देगा, मेरा काम खत्म हो गया। मेरा एम्प्लॉय जाएगा, वो C&F से आगे माल बिकवाएगा। दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है? ये मार्जिन जो होता है वो मार्जिन, ये सारा मार्जिन आप मिलाओगे तो टोटल आपका डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन शुड बी नॉट मोर देन 15%, एट द मैक्स 20%। मतलब आपकी जो प्रोडक्ट है उसका टोटल ये जो भी मार्जिन है वो 15 to 20% मार्जिन इसमें जाएगा। सो व्हेनेवर यू आर मेकिंग योर प्राइसिंग, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि 15 to 20% मार्जिन ये चैनल में है। इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। आपने जो मार्जिन इनको दिया है, जैसे आपने C&F है तो C&F को आपने 3% मार्जिन दिया है, तो 3% में मतलब आपने उसको बिल कर दिया, फिर आगे का काम वो कर देगा। जैसे रिटेलर है, रिटेलर के पास सबसे ज्यादा मार्जिन रहता है, उसके पास 7 से 8% मार्जिन रहता है, तो डिस्ट्रीब्यूटर उसको माल देता है, फिर वो आगे बेच लेता है, रिटेलर की दुकान में कस्टमर के बेच देता है। 15 to 20% into set market. Now, what some companies are doing, like again taking this example, there was a company called Xiaomi. Xiaomi ने क्या किया पता है? Xiaomi में there were 3 young ladies. इंडिया में 3 ही लोगों का उन्होंने स्टाफ रखा।
सीधा उन्होंने अमेजोन फ्लिपकार्ट के साथ टाई अप किया, ये सारा मार्जिन उनको दे दिया, ऑनलाइन ही माल भेजा और अपना ब्रांड खड़ा किया। ये भी कर सकते हैं, ये सारा मार्जिन इन्होंने माइनस कर दिया, इनका कॉस्ट ऑलरेडी डाउन आ गया, उन्होंने सीधा टाई अप किया फ्लिपकार्ट अमेजोन के साथ कि भाई मेरे को ये करना है, मेरा ये ब्रांड है, ये जो फीचर्स है उनसे बेटर क्वालिटी के फीचर्स है मेरे पास, बट आई एम नॉट अ ब्रांड। व्हेन Xiaomi came, it was not a brand, बट उन्होंने जो बनाया वो ये बोला कि ये लोग जो बनाते हैं उनसे ज्यादा फीचर्स वाले फोन मैं आपको कम रेट में दे रहा हूं। वो करके there were only 3 ladies, there was a staff of 3 person into India who was managing India operations, and जैसे नोकिया था, नोकिया was a market leader with 90% plus market share, सैमसंग को नोकिया का मार्केट तोड़ते तोड़ते 12 साल लगा, and they broke into 3 years. Xiaomi broke their market into 3 years. So nothing is right, nothing is wrong. You need to decide what is better for you, what is better for your customer. आप जब तक कस्टमर का साइकी नहीं समझोगे, जब तक ये नहीं समझोगे कि मेरे कस्टमर को क्या चाहिए, किस फॉर्म में चाहिए, कैसे चाहिए, तब तक आपका बिजनेस प्लस माइनस होता रहेगा, तब तक आप इसी लेवल में रहोगे। इस लेवल से ऊपर होना है तो आपको ये समझना है कि मेरे कस्टमर के पास रीच कैसे पहुंचना है, मेरे को किस लेवल से पहुंचना है, किस सेटअप से पहुंचना है, किस फॉर्म में पहुंचना है, कौन से फीचर्स मुझे देने हैं, किस प्राइस पर देने हैं। प्राइस इज ऑल्सो वेरी वेरी सेंसिटिव। सो ये सारे फैक्टर आपको यहां पहुंचाएंगे। व्हेन देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस फैक्टर्स, एंड सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है, ये सारी चीजों से सब ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है, सस्टेनेबिलिटी ऑफ द फाउंडर। If he thinks that this is my business and I will reach there, it is the main factor. Then you will reach over here. Once you are reaching over here, उसके बाद क्या करना है? Let us say, अब इसका क्या मतलब कब पता चलेगा कि मैं यहाँ पर पहुंच गया हूँ? We are saying कि ये सब करोगे, यहाँ पर पहुंचोगे, 1 साल लगेगा, किसी को 6 महीना लगेगा, किसी को 2 साल लगेगा, किसी को 5 साल लगेगा। अब यहाँ पर पहुंचे, उसके बाद क्या करना है? डोमेस्टिक और ग्लोबल एक्सपेंशन करना है, और क्या करना है? कोलैबोरेशन करना है, आपको आगे की सोचते रहना पड़ेगा, राइट? और क्या करना है? मतलब सर ये स्टेज कौन सा होगा, सीड फंडिंग, सीरीज फंडिंग? जिस दिन हम यहाँ पर जो भी बात करें वो हम बिजनेस की बात करें, हम यहाँ पर स्टार्टअप की बात नहीं कर रहे। हम स्टार्टअप मतलब हमने पैसा तो ले लिया है, उसके बाद हम एक्चुअल बिजनेस की बात करें, ग्रोथ की बात कर रहे हैं कि हमारा ग्रोथ कहाँ से आएगा। पैसा आपने या तो गवर्नमेंट से लिया या तो अपना खुद का डाला, जो भी हुआ, उसके बाद आपको ये जो स्टेज है वो ये स्टेज है जहां पर कस्टमर से पैसा लेना है, वो स्टेज है। और ये स्टेज ये है कि जहां पर आपका कस्टमर आपको पे कर रहा है, जब आपका बिजनेस सेल्फ सफिशिएंट हो, सेल्फ सस्टेनेबल हो गया। अब इसके आगे क्या? ये तो हो गया, इसके आगे क्या? इनोवेशंस करना है, और क्या करना है? लीगसी सेटअप करनी है, लीगसी सेटअप करनी है, और आउटलेट्स तो यहाँ पर ही बढ़ाने पड़ेंगे आपको, नंबर ऑफ आउटलेट्स यहीं पर बढ़ाने पड़ेंगे, तभी आप यहाँ पर पहुंचोगे। वैल्यूएशन मतलब और फंडिंग चाहिए, और फंडिंग चाहिए। तो सर फिर तो लास्ट में तो आईपीओ लाओगे, और dominate other fields like Reliance did. dominate other fields, और जब आप यहां पर पहुंचोगे तो व्हाट आर द साइंस ऑफ दिस? जब आप यहां पर पहुंचोगे, मे बी आफ्टर 2 years, आफ्टर 3 years, आफ्टर 5 years, तो याद रखना मेरे वर्ड्स, आपकी जो लाइफस्टाइल होगी वो कैसी होगी? आप 6 साढ़े 6 बजे घर पहुंच जाओगे, आराम से आपके घर वाले खुश होंगे आपसे,
आपके पास 50% एम्प्लॉइज नॉन प्रोडक्टिव होंगे, बट एवरीबडी विल बी हैप्पी। यार मैं तो ये बहुत अच्छी कंपनी में काम कर रहा हूँ। योर कस्टमर्स विल बी हैप्पी एक्सेप्ट दिस 1000 कस्टमर्स। ये 1000 कस्टमर को छोड़ के बाकी सारे कस्टमर हैप्पी होंगे। आप इनको भूल चुके होंगे। आपके पास जो कस्टमर होंगे, आप डे टू डे उन्हीं से फीडबैक ला रहे हैं, नहीं सब कुछ अच्छा है। आपके जो सेल्स वाले होंगे, अरे सर हमारे तो सारे टारगेट हो रहे हैं। एवरीबडी विल बी हैप्पी एट दिस स्टेज एंड दिस इज द मोस्ट डेंजरस स्टेज। क्यों? क्योंकि इसके बाद हमेशा ये आता है, जिस दिन से यू विल फील कि आई एम देयर, दिस इज द मोस्ट डेंजरस फील्ड। यहां पर सब मेहनत करते हैं, यहां पर सब मेहनत करते हैं। सबसे ज्यादा मेहनत आपको यहां पर करनी पड़ेगी, क्योंकि आगे बढ़ना बहुत आसान है, वहां पर टिके रहना बहुत मुश्किल है। सबके सब आपका जो भी बिजनेस है, आप यहां बहुत पहुंच जाओगे। 90% पीपल विल रीच ओवर हियर। अगर आपने ये स्टेज खत्म कर दिया, यू विल बी हियर, बट यहां से आप यहां ही जाओगे और कहीं नहीं जाओगे। यहां से आप यहीं जाओगे, क्योंकि ये कर्व आगे यहीं पर जा रहा है। तो इसको अरेस्ट कैसे करें? तो आपने जिस बिजनेसमैन की स्टोरी सुनी है, आपने जिसकी किताब पढ़ी है, आपने जिसकी मूवी देखी है, जो कुछ भी देखी है, हर आदमी ने एक ही चीज किया है जो सक्सेसफुल हुआ है। यहां पर जब आप जा रहे हो तो हमेशा 2 कदम पीछे रहो। हमेशा ऐसा कुछ चीज करो जो किसी ने सोचा नहीं हो, क्योंकि आपको यहां पर पहुंच के पता होना चाहिए कि आगे डाउनफॉल होना है। आपको ये पता होना है कि यहां से मुझे यहां नहीं जाना है, मुझे यहां जाना है। तो नेक्स्ट पीक क्या है वो आपको पता होना चाहिए कि मेरा नेक्स्ट पीक ये है। वो नेक्स्ट पीक के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको यहां पर करना है। जिस दिन आप 6 साढ़े 6 बजे घर चले जा रहे हो, उस दिन ये सोचना है आपको कि अब मेरा नेक्स्ट पीक ये है। अब ये जो लोग हैं, ये कस्टमर है, ये मुझे यहां से यहां नहीं पहुंचाएंगे। ये कस्टमर मुझे यहां से नीचे ही ले जाएंगे, क्योंकि ये कस्टमर जब आप यहां पर होंगे तब उन्होंने अपना माइंडसेट बना लिया है कि मुझे किसी और कंपनी का कस्टमर बनना है। आपके जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर है, जो भी लोग हैं, ये सब आपको यहां से यहां कभी नहीं पहुंचाएंगे। यू नीड न्यू सेट ऑफ पीपल, क्योंकि ये लोग जो है इनका यही कैलिब्रेशन है कि आपको यहां पर पहुंचाएंगे। उस टाइम पर आपको 2 कदम पीछे लेना पड़ेगा हमेशा। आप किसी भी ब्रांड का स्टोरी देख लो, वो कभी पब्लिकली नहीं बताएंगे, बट इफ यू विल रीड इट इन डिटेल, यू विल कम टू नो कि आपको हमेशा 2 कदम पीछे लेना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। और वो 2 कदम पीछे लेने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि मेरा नेक्स्ट पिक क्या है। मेरा नेक्स्ट पिक क्या है वो आपको पता होना चाहिए।